Yes. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee. And Independence Day greetings to all fellow Indian citizens and NRIs across the globe. Once again, we greet you on this great occasion. We are independent. Sarji, sir also will greet everyone here. And Thank you, Dr. Reddy. बहुत धन्यवाद, and it's always a pleasure to come on Dr. TSPR channel and my Independence Day wishes and greetings to all the viewers. And it's great to be on this auspicious occasion with Dr. Reddy and TSPR channel. Wonderful, sir. It is great to be here. And you might have seen our faces. We just hoisted the flag, local MLA, corporators coming, but it is so hot. Yeah. The climate change is affecting us. I have not done anything to refurbish my image. Why? Because though we are celebrating our freedom, but someone else's freedom or right is usurped, modesty gone, raped and killed. Can we celebrate? And that too when it comes from our own doctor's fraternity, being a doctor myself, shaming us. First of all, we convey through our wonderful guest heartfelt condolences to the family, and we sincerely pray for the departed soul of the doctor who has suffered that pain of rape and atrociously such a homicide we call in our doctor parlays, killing them so brutally, so inhumanly. Very sad state of affairs. We are starting on that note to remind the Honorable Prime Minister of India, who has just hoisted the flag on the Red Fort. We are reminding him what happened to your Beti Bachao, Beti Padhao, Prime Minister Narendra Modi ji. And this is happening in a state which is ruled by a woman chief minister, Mamata Banerjee, of Trinamool Congress. That is really baffles us, confuses us. We are shocked beyond words. What is this happening, Mamata Banerjee? What is this political message you are sending out from your state? And Moitraji MP, who is a vocal and very vibrant MP, we salute her for various issues which she confronts, and the way she has been harassed in the last parliament. She came out very boldly and openly, and such wonderful people who are there from Kolkata, from Trinamool Congress, from Bengal. But what is happening in your own backyard? We have to win at home to conquer the world. How do you fathom this? A doctor, PG doctor, was on duty. She is raped and killed brutally. When the entire doctors of Kolkata, they were agitating peacefully, and when they were about to march, this another mob, yesterday, they again create fear psychosis, they attack, they loot everything, they destroy the hospital premises, including all emergencies. Shame on them. All emergencies, they have destroyed, again created fear psychosis. I will try to play those videos. What happened to female doctors, we don't know. Male doctors running in cover to save their lives. In the society, doctors are demigods next to God. If people wish and pray, bless, they are doctors. And what the hell you are doing with doctors? You think doctors are so cheap rated? This is directly against those idiots who have taken law into their hands. On this Independence Day, I am again remembering Mahatma Gandhiji's words. Sir, your video. He said, the real freedom of India, the real independence of India would be when a woman or a girl walks freely in the midnight in the streets of India. I am quoting Mahatma Gandhiji. What is this nonsense going on? Can we allow this? Whoever it is,
What is the administration doing? Rule of law, law and order. And in the same state, even governor, there was a case against governor that he has dash against the modesty. What is happening in West Bengal, Mamata Banerjee ji? You are a woman chief minister. You should have been a role model. But what is happening? And that too, this is happening when Bangladesh, the neighboring state which we have borders, is burning there. What is happening in Bangladesh is a mayhem. But unfortunately, the other side of Bangladesh, West Bengal too, is in a similar state of affairs. That is why on this day, we wanted to take up this show. You think doctors are soft targets? Mind you, all politicians and administrators and their propped up media, doctors know the pain. They know if they hit it at this spot in your body, what will happen? With that sense, doctors always adopt a non-violent approach. I don't say there may be black sheep, as has happened during COVID-19, how our own fraternity, including Indian Medical Association, I'm blaming them. Where are they? They got away by the Bill Gates dictated all those health aspects that has ruined India. Doctors have been put to shame, taking orders from what should I say? Those who do not even understand what medicine is, health is, treatment is, prevention is. They were taking the dictates of such people. Why? To satisfy their own selfish egos. That is the crux. That is where doctors have been losing respect because of COVID-19 treatment as well as vaccines. How many have been suffering? That is the underlying cause. Indian Medical Association, you have seen without any drug trials, how drugs have been induced. All these things have generated negative feelings in the mindset of the people. That is why they have started to de-link those demigod status to the doctors' fraternity, forgetting that ultimately they have to go to the hospital and it is the same doctor, nursing staff, same fourth class staff have to treat them in emergencies. How the hell you can indulge with such? If you have any case, you could have gone as per rule of law. But who has given you power? And shamelessly, all political parties, except for few, are not even uttering a word. So many MLAs, women MLAs, ministers from TMC, MPs. I don't know Maitra ji has commented on this or not. I'll take a first comment from Amitabh Banerjee ji, then I'll start showing you what has happened there. Sir, please. नमस्कार जी. एक्चुअली बहुत दुख की बात है. इट्स अ ग्रेट सैडनेस दैट दीज कॉलेजेस वर प्रीमियर कॉलेजेस एट वन टाइम, आरजे कार एंड नीलरतन सरकार. एंड अगर यहाँ पे अगर ये हाल है, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंस के टाइम से ही डीके चालू हो गया था. इंडिपेंडेंस में जो डॉक्टर सर जोसेफ बोर्ड ने कमेटी बनाया था, उन्होंने कहा था कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का है. और उन्होंने 10,000 20,000 पॉपुलेशन विलेज लेवल में उन्होंने 75 बेड हॉस्पिटल का ये सजेस्ट किया था बोर्ड कमेटी ने, जहाँ पे 6 डॉक्टर होंगे इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजी सर्जन, जो कि विलेज लेवल में. और जो पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल, तालुक लेवल में 650 बेडेड हॉस्पिटल्स, पूरा ऑल स्पेशलिटीज विल बी देयर. और डिस्ट्रिक्ट लेवल में टर्सरी केयर हॉस्पिटल है. हमने इंडिपेंडेंस के बाद से पूरा हेल्थ को नेग्लेक्ट किया है. और ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, ये क्रंच हमने पूरा ये, और 80s 90s के बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो पूरा प्राइवेट सेक्टर को हमने हेल्थ दे दिया है. धीरे धीरे उसमें हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो और नेग्लेक्ट हो गए हैं. तो अभी बेचारे क्या करेंगे? हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, दे आर वर्किंग अंडर ग्रेट स्ट्रेस बिकॉज दे आर अंडर स्टाफ. बिकॉज सब प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैव टेकन ऑफ. जिनके पास इंश्योरेंस है, मिडिल क्लास है, वो सब अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है. और गरीब आदमी गांव से चला आता है, दूर दूर से आता है, तो क्राउडिंग होता है सिटीज़ में. जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, जो कि हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में जो ट्रीटमेंट मिल जाता, तालुक लेवल में ट्रीटमेंट मिल जाता, उसके लिए माइग्रेंट पॉपुलेशन बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टाफ बहुत कम होते हैं. और ये जो डॉक्टर है जिनका कत्ल हुआ, जिनका ये साथ इतना ये हुआ, तो वो 36 आवर्स ड्यूटी कर रही है. 36 आवर्स. सोच रहे हैं कि कोई भी सर्विस सेक्टर में 36 घंटे कोई ड्यूटी करता है क्या? ये इटसेल्फ इट इज़ वर्किंग अंडर ग्रेट
कंडीशंस, हार्श कंडीशंस, कोई भी वर्ल्ड में इतना लॉन्ग ड्यूटी आवर्स नहीं होता है किसी प्रोफेशन में। और इसके बाद उसके लिए कोई सेफ्टी डॉक्टर्स रूम नहीं है जहां वो रेस्ट करे। तो ये हाल हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप हॉस्टल चले जाइए, टोटल नेग्लेक्ट है, करप्शन बहुत है। और अभी जो प्रिंसिपल है इनके अगेंस्ट भी काफ़ी करप्शन चार्जेस है। और जैसे कि कोविड के टाइम भी डॉक्टर रेड्डी बता रहे थे, मेरे को एक अभी मैसेज आया था, लंबा मैसेज लिंकेड में, एक कोई डॉक्टर ने बताया, एम्स में डॉक्टर है, कि मैं कोविड के टाइम मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि डेथ हो गए हैं, ड्रग से डेथ हो गए, वैक्सीन से डेथ हो गया, हमारे सीनियर डॉक्टर उसको दबा रहे थे उसको, हमको और हमको भी बताया गया कि आप ये नहीं बोलेंगे साइड इफेक्ट्स को। तो ये सब अभी बहुत बड़ा एक प्रकार से क्या हो गया है कि जो जूनियर लेवल के डॉक्टर्स है, हाउस सर्जन है, इंटर्न्स है, जो पीजी कर रहे हैं, और इवन जो मिडिल लेवल के डॉक्टर्स है, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं गवर्नमेंट में, दे आर वर्किंग बियॉन्ड कैपेसिटी। सीनियर लेवल में पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, सीनियर लेवल में करप्शन हो रहा है, दवाइयों का करप्शन हो रहा है, कंट्रैक्ट्स का करप्शन हो रहा है। और कब की अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, अभी जितने भी ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो काफ़ी कमीशन इसमें रहते हैं। और जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं वो सब चले जाते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, और हमेशा अंडर स्टाफ रहते हैं। अभी हमारे गवर्नमेंट कई एम्स खोल रहे हैं, पर एम्स के डॉक्टर कहाँ से लेते हैं? दूसरे मेडिकल कॉलेज से डेपुटेशन में लेते हैं। तो वो मेडिकल कॉलेज भी धीरे धीरे खोखला हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है कि बाहर से लगता है, और पेशेंट्स भी बेचारे टेम्पर लूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत वेट करना पड़ता है, ज़मीन में बेड्स है। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, बेचारे गरीब लोग को बहुत रुकना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर भी ओवरवर्क्ड है, दोनों को मतलब स्ट्रेस है, डॉक्टर को भी स्ट्रेस है, पेशेंट को भी स्ट्रेस है। तो इसमें क्या है कि वायलेंस वगैरह हो ही जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज अ डीप मैलेज, 70 years नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेस पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते थे, जब 80s के बाद क्या हो गया, लिबरल इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने चालू हो गए। आज के तारीख में आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, या आधे 50-50% गवर्नमेंट है, 50% प्राइवेट है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मेजोरिटी लोग निकलते हैं, उन लोग को काफ़ी हाई फीस देना पड़ता है। सो दे आल्सो वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। गवर्नमेंट में एक तो सैलरी कम है और वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है कि ये 70 साल का नेग्लेक्ट है। और हेल्थ बजट अभी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हेल्थ बजट इज जस्ट बैंड एड एट द रॉन्ग प्लेस। बिकॉज हमको ग्रास रूट लेवल से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। और डॉक्टर्स बड़े बड़े ये फील, अभी देखिए, दो चीज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत दुख की बात है। नीट में भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, नीट का भी स्कैम हुआ, पता चला कि नीट में भी माफिया है। तो इसका मतलब नीट में जो अभी तक पास होके निकल रहे थे, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो जा रहे थे, वो भी, उनका भी माफिया लिंक्स है, क्योंकि वो अनफेयर मीन से शायद एंट्रेंस लिया। एमपी में भी 10 साल पहले कैम हुआ था, व्यापम्स का। तो इसके बाद वो माफिया फेस करके नीट क्लियर करते हैं, मुश्किल से करते हैं। उसके बाद बड़े मुश्किल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। उसके बाद वो इतना मेहनत करने के बाद बेचारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी है उनको। और उनको अगर सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो कोई भी फ्यूचर में डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छा कोई भी कैरेक्टर का, या अच्छा कोई भी अपना बच्चे को। इस लाइन में इतना खतरनाक हो रहा है, जो वातावरण इतना खतरनाक हो रहा है। हम कहते हैं उनको वॉरियर है, पर ये मैं बता दूं कि ये जूनियर लेवल और मिडिल लेवल डॉक्टर्स ये फेस करते हैं। और जैसे मैंने सीनियर लेवल डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनके भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाते हैं, उनके भी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, फार्मा कनेक्शन हो जाते हैं, और अक्सर वो जाके अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अस्पताल चले जाते हैं। सो ये बहुत नेग्लेक्ट है। इट इज रिक्वायर्स एक्चुअली पीपल्स मूवमेंट चाहिए। अभी जो पीपल है वो समझते नहीं है कि बड़ा बड़ा एम्स खोल दिया, कॉर्पोरेट अस्पताल खोल दिया, उससे नहीं होगा। हमारा जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, और इतना माइग्रेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट्स का फ्रॉम रूरल एरिया, उसमें क्राउडिंग बढ़ जाता है। रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए जहाँ डॉक्टर्स जाए, फैसिलिटीज होने चाहिए, पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ये। और और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन भी किए हैं, जो बेचारा रेप एंड मर्डर कहते हैं,
पहले तो प्रिंसिपल ने सुइसाइड डिक्लेयर कर दिया, मिसलीड कर दिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुआ है, और अभी बॉडी को भी आधी रात के बाद जला दिया गया है, क्रीमेट कर दिया गया है। तो इतना जल्दी अगर मेडिको लीगल केस है, इसमें कवर अप का भी थोड़ा ये लग रहा है। और उसका जो डॉक्टर का जो कार है उसको भी रैंसैक किया है, उसको भी कुछ लोगों ने। तो ये सब बताता है कि इसमें भी कोई डायरेक्ट एक आदमी का हाथ है या कईयों का हाथ है, ये बताना मुश्किल है। और जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम है, जहाँ सेमिनार हॉल में जहाँ बॉडी मिला, उसके आजू बाजू 20 मीटर के दूरी में रेनोवेशन का काम चालू कर दिया आफ्टर द इवेंट। तो ये सब कुछ चीज़ ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जो निशानी है या जो क्लूज है, एविडेंस है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक प्रकार से बहुत ऐसा है ही डॉक्टर मतलब। साहब, ऐसा है, जो बदमाशी जो प्रिंसिपल ने किया है इसको सुइसाइड करने की, और इतनी रात रात कैसे जला दी जाती है, और बेचारे पेरेंट्स को, और इतना अब नीट, सी मैं नीट की ओर ले जा रहा हूँ, इतना मेहनत करते लीक हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी, जिस तरह सुनील गावस्कर सेंचुरी मारते हैं लेकिन इंडिया हार जाती है, उसी तरह नीट की हालत है। पीजी परसों परसों ही हुआ, अंडर ग्रेजुएट अभी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग, हम डॉक्टर कोर्स के द्वारा समाज को सेवा करने की एक इच्छा से जब ये युवक युवक अगर इस तरह आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह की अगर फैसिलिटीज हैं, वहां पर एक मूल जो होना चाहिए, आज तक कोई सरकार ने, यूपीए हो या एनडीए हो, कुछ नहीं किया सिवा प्राइवेटाइज करने की। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो यूपीए गवर्नमेंट में शुरू किया है, उन्होंने खिड़कियां खाली विंडोज ओपन किया है, और मोदी जी आके वो पूरे दरवाजे सब कुछ ओपन कर दिया। तो इस तरह पब्लिक हेल्थ, हमारी जो स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य को इसी तरह प्राइवेटाइज करने की इच्छा रखते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो आम लोग जाते हैं, वहां पर सही तरह की परिस्थितियां अगर नहीं है, विपरीत परिस्थितियां नहीं है, और हमारे बच्चे जो पढ़ के वहां पर एमबीबीएस हो या पीजी हो या दूसरे आयुर्वेदा हो या जब जो लोग जाते हैं वहां पढ़ने के लिए, इस तरह विपरीत परिस्थितियां जो सरकार कर रही है, तो इसका फलस्वरूप जो है आम आदमी डॉक्टर्स के ऊपर ले रहा है। और अगर इसी माहौल है, तो लोग डरते हैं अपने बच्चों को ये मेडिसिन पढ़ाने में। क्या ये एक इस तरह की एक साजिश कुछ रचाई जा रही है क्या? ये गवर्नमेंट खिलाफ सरकार हॉस्पिटल्स को बंद किया जाए, खत्म, और सरकारी विद्या भी ना हो, ताकि आम आदमी को कोई उसको कोई इस तरह की सुरक्षित स्वास्थ्य ना मिले या उस तरह की विद्या मिले। एक बड़ी साजिश कुछ है क्या ये? बिल्कुल है, इसमें प्राइवेटाइजेशन के बाद इसका जो पतन, नॉट ओनली हेल्थ सेक्टर, दो सेक्टर में सबसे ज़्यादा पतन हुआ है। एक तो हेल्थ और दूसरा एजुकेशन में। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और इसमें मेरिटोक्रेसी होना चाहिए। गरीब बच्चा मेडिकल पढ़ ही नहीं सकता, उसको कोचिंग भी नहीं कर सकता। नीट के लिए इतना कोचिंग होता है, और अभी कोचिंग के बाद पता चल रहा है कि कोचिंग के आगे भी चीज़ है, पेपर लीक है, ये है, उसमें भी स्कैम है। तो एक तो मेरे को लगता कि इनोसेंट अच्छा कैरेक्टर वाला तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और अगर गलत कैरेक्टर वाले डॉक्टर बनेंगे तो आप और पतन होगा, और करप्शन होगा, और उसका जो एक प्रकार से जो नोबेल प्रोफेशन है वो नोबेल नहीं रहेगा, और शायद अभी नहीं है। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आता है तब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, कमीशंस आ जाते हैं। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी देखा है आपने, जितने बड़े बड़े फाइनेंस, सर हर 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 पार्टी पैसे का रहता है उनको, इंटरेस्ट रहता है। और अभी आप देखेंगे, जब हम 1980 के पहले जब प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं था, जो हेल्थ मिनिस्ट्री था वो बहुत ही एक छोटा सा मिनिस्ट्री होता था। मतलब उसी मिनिस्टर को दिया जाता था जो हाई प्रोफाइल नहीं होता था। आपको याद होगा कि राजनारायण को भी हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। और उन्होंने बेयरफुट डॉक्टर स्कीम लाया था कि जो विलेज में बेयरफुट डॉक्टर्स है, पर उसमें पैसा नहीं है। उसमें अगर हेल्थ सर्विस मिल भी जाए, तो अभी देखेंगे 1980s के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो गया है। अभी कोई स्ट्रांग मिनिस्टर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि काफ़ी उसमें इंटरैक्शन है पब्लिक प्राइवेट के नाम से। काफ़ी आपके
टेंडर्स पास होते हैं और बड़े बड़े जैसे नए नए वैक्सीन ऐड हो रहे हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। पहले इम्यूनाइजेशन में क्या था कि गवर्नमेंट वैक्सीन बनाता था कसौली और चेन्नई वगैरह में, धीरे धीरे वो बंद कर दिया और प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसको वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर दिया। जैसे ही प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चर बढ़ा कि हर दिन कोई नया वैक्सीन ऐड हो जाता है और हमको एक्चुअली बेसिक हेल्थ सर्विसेज पहले होना चाहिए। बेसिक हेल्थ सर्विसेज हो, वाटर सैनिटेशन हो। हमारा जो अभी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है या हमारा जो अंडर न्यूट्रिशन रेट है या ट्यूबरकुलोसिस मोर्टेलिटी है, वो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप में जो स्टैंडर्ड था, आज हमारा ये वो स्टैंडर्ड है। तो इसमें बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और अभी तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रोग्रेस किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक और चीज़ है, अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ, डॉक्टर साहब मैं तो देखना ही बंद कर दिया क्योंकि हमको तो दुखी होता देखने से। कितने मेडल मिले इंडिया को ओलंपिक्स में? गोल्ड मेडल कितने मिले? ब्रॉन्ज ही मिले हैं, एक सिल्वर और जावेलिन में सिल्वर और बाकी पूरे ब्रॉन्ज। बेचारे मेहनत की हाँ है हॉकी टीम। गोल्ड नहीं है, हाँ पाकिस्तान को गोल्ड मिलता है। और इतनी बड़ी देश, हमको हाँ। खेल में कोई मेडल नहीं मिलता क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहता, और स्वास्थ्य बनना वो है। मैं वो उसी में आ रहा हूँ मैं। अब वही आप इसको कितना भी ब्लेम करें, कितना भी कोच को ब्लेम करें, अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज करे, और देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है इंटरनेशनल मैदान में। हाँ, बाकी चीजों में आप स्टैटिस्टिक्स को मरोड़ सकते हो कि नहीं नहीं हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, रोज कोई नया मॉडल निकाल सकते हो कि हमारा हेल्थ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा हो रहा है। पर जब स्पोर्ट्स में जाते हैं, छोटे छोटे कंट्री है वो भी गोल्ड ले जाते हैं, और हमारा इतना वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है और हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक जायंट बन रहे हैं, हमारा हेल्थ क्यों स्पोर्ट्स विश्वगुरु, में है? विश्वगुरु है। हाँ, क्योंकि हमारे देश में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इंडिया में है। 30-35 अंडर 5 बच्चे मेल नरिश्ड है। तो ये कैसे बड़े होंगे, तो कैसे स्पोर्ट्स मैन अच्छे बनेंगे? क्योंकि हमको 2 जनरेशन लगेगा। आज हमने अगर चेंज चालू किया, पहले तो हमारा वुमेन, अभी वुमेन को अपने वुमेन के ऊपर शोषण हो रहा, पढ़े लिखे वुमेन का रेप हो रहा, बाकी वुमेन के ऊपर भी काफ़ी शोषण होता है, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। हाँ, अपना देखिएगा मेल फीमेल रेशियो कम हो रहा है, तो गर्भ से लेके फ्रॉम वूम टू टूम वुमेन हैव टू फेस, और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। गर्ल चाइल्ड, हमारा गर्ल चाइल्ड का जो वुमेन बनती है तो उसका पेल्विस या उसका हाइट कम रहता है, उसका हाइट कम रहेगा। विलेज लेवल में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अगर वो बड़ा बच्चा पैदा करेंगी तो वो बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से डिलीवरी में मर जाएगा, क्योंकि वो सिर फंस जाएगा, क्योंकि वुमेन छोटा है। तो वो छोटा ही बच्चा पैदा करती है, और वो छोटा बच्चा गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, बड़ा होके भी छोटा रहेगा, क्योंकि उसको मेल न्यूट्रिशन बचपन में होता है तो पूरा पोटेंशियल नहीं रीच करता। जब वो बड़ा होगा तो उसको कहाँ इंटरनेशनल इसमें स्पोर्ट्स में कहीं नहीं स्टैंड करेगा वो। तो यही हो रहा है। और अभी अगर आपको करना है तो आज के तारीख में गर्ल चाइल्ड की तरफ ध्यान देना है। एनीमिया हमारा सबसे ज़्यादा वुमेन में। अभी का जो है, आज अगर बच्चा जो पैदा होती है उसको अगर न्यूट्रिशन दोगे वो वुमेन बनेगी, वो राइट, हाइट अच्छा होगा, उसका पेल्विक स्केलेटल अच्छा होगा, तब वो नॉर्मल चाइल्ड पैदा करेगा, वो बड़ा होगा तब जाके तो आज से 20 साल लगेंगे राइट। आपको ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इतना कीमती है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, ऐसी स्वास्थ्य को राष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार, हर एक राजनीतिक दल उसको खत्म करने की बड़ी साजिश प्राइवेट, जिस तरह पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बिल गेट्स को सौंप रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हम ऐसे डॉक्टर्स अगर खोद बैठे, जिस तरह रेप करके मार दिया गया, तो क्या हालत होगी। और ये स्वास्थ्य ना रहने से ही हम सबको इतने, सरकार ध्यान नहीं दे रही है खान पीने में। पौष्टिक आहार, the nutritious food is deficient, and that is why you are providing ration free. Your own budget says, again, midday meal scheme, all governments, why are you doing it? Because the rural area, semi-urban area, and even the lower middle classes in urban areas, they are not getting nutritious food. It's a shame, even after independence. So when such is the case, with so much of difficulty, these children, our youth, our girls, women folk, when they complete medicine and start treating or during studying, if they are ill treated this way, will any girl or woman will become a doctor tomorrow? That is why we are trying to stress. And malnutrition at young age
And when she is giving a birth, she is not able to give birth to a healthy child because of malnutrition, which is starting at a very young age. And you provide midday meals and you are providing free rations. And top of that, you say we are Vishwaguru. Where is the health? When health is neglected, and from that, education is also neglected, these sort of things are happening across India. When they go to a government hospital, no facilities. They are blaming the infrastructure, the doctors who are part of it, and some doctors like the principal who has resigned. These fellows are hand in gloves with the administrators, corrupt administrators. I'm talking about corrupt administrators and politicians and their pampered media. Not all. Honest, we will salute them. They are trying to convert this into a suicide. How shameful this is. So let me show you some videos. After independence also, there is no security for humans and more so. So this is the one we just wanted to salute you on this great 78th Independence Day while we celebrate. And this is the official logo. I'm trying to remind all those official Beti Bachao, Beti Padhao logo. बेटी कहां बच रही है मोदी जी और ममता बनर्जी, मोइत्रा जी जैसे अच्छे लीडर्स. व्हाट इज हैपनिंग इन योर ओन स्टेट? पढ़ाने के लिए गए, बेटी की जान खो बैठे और किस तरह रेप करके उसको मार दिया जाता है. और वहां के प्रिंसिपल इसको सुइसाइड, आत्महत्या के फलस्वरूप, वो एक डॉक्टर रहते हुए भी आत्महत्या, रेप को आत्महत्या के उसके ऊपर वो कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. इसी यहीं पर पता चलता है कि काफी बड़े लोग या कोई किसी को बचाने की एक बड़ी साजिश हो रही है. Am I right or wrong, Amitabh Banerjee? The prima facie is here itself. Definitely. Yeah. The prima facie is here when the doctor principal is trying to convert a rape and murder homicide into a suicide. So that is where we start. Now, this is the video which I'll try to play. Now, this is the second video. I don't want to play. This is afterwards. 31-year-old doctor is raped brutally. Banana Republic is the way we are heading to. Releasing rapists on parole like releasing terrorists. Health's second name is India, is it? See, he rape convict Ram Rahim gets 21-day furlough, walks out of jail. Haryana, because of elections, they are taking his support. Court convicted him. And how can you walk out? And then you have another self-styled godman, Asaram Bapu, in jail for rape, gets 7-day parole. If the governments of the day, whether it is state or central governments, when they are there with these rapists, what sort of message you are sending? Can Beti Bachao, Beti Padhao will happen? Can real investigation will do? That is why they are saying Banana Republic is the way we are heading to. Releasing rapists on parole is like releasing terrorists. BG Car Medical College and Hospital. 31-year-old doctor is raped brutally. And they chose Independence Day to attack a peaceful protest of doctors. They destroyed everything. They burned the seminar hall also. Evidence has been destroyed. Happy Independence Day at Mamata official, at Kolkata doctor, at Kolkata horror. What is happening, Mamata Banerjee ji? This incident is shaming not just India, but entire world is watching. Try to show you another video.
Doctors, protesting doctors are being chased away. They have destroyed the hospital, all evidences. Where is the government? Law and order, what is the Calcutta police doing? What is this nonsense? On the eve of Independence Day. These are the visuals from Kolkata. Great old city, which we say a literacy city, contributed so much towards independence. Rabindranath Tagore and the likes of so many wonderful people. So how the doctors are being chased away? Who are these hooligans? In Kolkata, this is happening on the eve of Independence Day. Doctors under attack as the mob runs loose and wild on the streets of Kolkata near Chikar Medical College, where a young woman was raped and killed. At the stroke of midnight, however, India awakes to and to think this night was meant to be about a rape victim and about we, the women. Why is the mob attacking the doctors? What is happening? Many visuals are there. Chikar Medical College destroyed its emergency room and taken down the doctor's protest site. This is the college where the rape and murder of a young female doctor took place, triggering nationwide protests. This was meant to be a night of solidarity and strength for the women, and it has turned out into this. Shame. What will they do now? Who will come with emergency? किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, अत्यावसर परिस्थिति है, उनका हाल क्या होगा? आप कुछ सोचा है? जो भी जिसने किया है ये There's a pelvic bone that's been described as being fractured. So we have seen the victim, the perpetrator of the crime, the guy who's been arrested. And we also know the lady. I mean, I work in Kolkata. I am a chest physician, and I know the lady in question personally. It is impossible for the lady to have had the fractures, the injuries that she's had, been given to her by one person. So all of this put together, I would suspect that there are more people. This is, I'll put it in the words that you said, Barkha, this is the gang rape rather than one person who's actually assaulted this lady. There's a pelvic bone that's been described as being fractured. So we have seen the victim, the perpetrator of the crime, the guy who's been arrested. And we also know the lady. I mean, I work in Kolkata. I am a chest physician, and I know the lady in question personally. It is impossible for the lady to have had the fractures, the injuries that she's had, been given to her by one person. So all of this put together, I would suspect that there are more people. This is, before I go to our guests, we have some only time. I'll just read out India's Nirbhaya movement all over again. A young female doctor raped and murdered while on work on a night shift, triggering massive protests by doctors across India. Horrific details are now emerging about the brutality. Medical evidence all points to a gang rape. Here is a top doctor who knew the woman describing to me the injuries, multiple pelvic fractures, scars,
bleeding private parts. It could not have been the work of one man alone. Only one man has been arrested in the Kolkata rape and murder at GCAR hospital, which means the other rapist killers are out there and free. Worst of all, this young woman was victim shamed. The principal of the college questioned why she was alone in the seminar hall where her body was recovered. We cannot encourage and urge women to pursue their dreams and be economically independent if we can't provide basic safety at the workplace without paternalism and patriarchy. So this is what is all about, and I have many other videos to share, but we'll just see what this is all about. She says, murder is this man, a man who should be prosecuted. The now ousted and disgraced former principal of RG Kar College, where the brutal sexual assault and the murder took place. Let me tell you why I think he is central to the cover-up. First, he actually blamed the victim. He suggested that the young woman should not have gone to the seminar hall. This is after she had just finished a 36-hour work shift. He indulged in the worst sort of victim blaming and victim shaming. 2, on his watch, the administration of the RG Kar Hospital and College misled and lied to the parents of this young woman. You know what the parents were told at first? The parents were told that their daughter had died by suicide. we will stop here because last 2 minutes we have. Sarji, Prime Minister ji Yeah. has Z category. All ministers, IAS, IPS officers have Z category, and their chamchas have Z category. How is that those working in the government hospitals or those doctors are not provided? Yes, if doctors commit any wrong, we were the ones to bring out. As per rule of law, they can be prosecuted. Please, sir, we have 2 minutes time. How is that there is no security? वेरी अनफॉर्चुनेट जो एक कोई लीडिंग मेडिकल कॉलेज आरजी कार के अस्पताल के अंदर अगर सेफ्टी नहीं है, अस्पताल के अंदर अगर प्रोटेक्शन नहीं है, लेडी डॉक्टर्स है, नर्सेज है, फीमेल पेशेंट्स है, मेल डॉक्टर्स है, तो दिस शोज अ टोटल लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड सिक्योरिटी. जैसे एयरपोर्ट में जैसे सिक्योरिटी है वैसे सिक्योरिटी होना चाहिए. अगर इतना सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे बीमार लेडीज रहते हैं, ओवरवर्क डॉक्टर्स रहते हैं, वायलेंट पेशेंट्स आ जाते हैं, गैंगस्टर्स आ जाते हैं, रेपिस्ट अगर अस्पताल में आ जाते हैं, और ये जो जिसको पकड़ा है वो पुलिस का में क्या काम करता था, पुलिस का एड टाइप ऑर्डर था, मतलब डायरेक्ट पुलिस में नहीं था, बट ही वाज कनेक्टेड विद द पुलिस. तो अगर ये कुछ प्लांटेड आदमी है, और दुख की बात है कहते हैं कि इनसाइडर भी है इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका कोई इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ भी देता है. और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी मेडिकल जो प्रोफेशन है सीनियर लेवल से बहुत पॉलिटिसाइज्ड हो गया है, बहुत करप्ट हो गया है सीनियर लेवल से, और बेचारे जूनियर डॉक्टर सफ़र करते हैं. जूनियर डॉक्टर सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं और वो सफ़र भी करते हैं. तो इसके लिए तो काफ़ी पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा मेडिकल सिस्टम को. Medical system has to be overhauled, and the way they have damaged the hospital and they have destroyed the peaceful side of the doctors, it clearly shows that those who have indulged or those who have propagated, they're still out. That is why now Kolkata, TMC, Mamata-led government has to be blamed for all this. Law and order is yours. How is that you are keeping quiet? Those fellows going out and creating mayhem, creating fear. That means those who have indulged in this crime are still scot-free. They have not been arrested. That is the reason why they want to destroy all the evidence. They want to create this chaos. Now, straight away to Prime Minister Modi ji and NDA and all those parties, Chandrababu Naidu or Nitish Kumar ji. Beti Bachao, Beti Padhao. Is it just a mere slogan? And don't forget, doctor knows the anatomy, physiology of a human being. They know where to press, where not to press. Don't force doctors to